ठीक है। सो इस पूरे टॉपिक में हमने पढ़ना क्या है, व्हाट इज ऑल रिगार्डिंग दिस टुडेज टॉपिक डे 17 फॉर द सब्जेक्ट पावर सिस्टम एंड टू. So in the whole topic named current carrying capacity of underground cable, we have to know what are the various losses that we encounter when we are uh, studying the current carrying capacity. Okay. Uh, Starting with the safe current carrying capacity of an underground cable is determined by the maximum परमिसिबल टेम्परेचर राइज, कि मैक्सिमम कितना टेम्परेचर राइज हो सकता है. तो ये फैक्टर हमारा डिटरमाइन करेगा कि करंट कैरिंग कैपेसिटी अंडरग्राउंड केबल की कितनी है. ठीक है. मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर राइज इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हाइल कैलकुलेटिंग द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन अंडरग्राउंड केबल. ठीक है. अब कहता है कि द कॉज ऑफ टेम्परेचर राइज क्या है, टेम्परेचर राइज का कॉज क्या है. ठीक है. द कॉज ऑफ टेम्परेचर राइज इज द लॉसेस दैट ऑकर इन अ केबल विच अपेयर एज हीट. तो टेम्परेचर राइज का जो बेसिक कॉज है वो है हमारा लॉसेस दैट अपेयर इन अ केबल विच अपेयर एज अ हीट. ठीक है. सो वो कौन कौन से लॉसेस हैं जो हमारे केबल में एज अ हीट की फॉर्म में डिसिपेट होते हैं. तो दीज लॉसेस आर कॉपर लॉसेस इन द कंडक्टर, कंडक्टर के खुद के कॉपर लॉसेस. द नेक्स्ट वन इज द हिस्टेरेसिस लॉसेस इन द कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल. एंड द लास्ट वन इज एडी करंट लॉसेस इन द शीट. So these are the three losses. So these are the three losses which generally cause the cable in the shape of heat. Okay. The safe conducting temperature is 65 degrees Celsius for armored cables and 50 degree Celsius for lead sheet cables. ठीक है. सो जो सेफ कंडक्टिंग टेम्परेचर है वो रहेगा 65 डिग्री सेल्सियस फॉर आर्मर्ड केबल्स एंड 50 डिग्री सेल्सियस फॉर लेड शीट केबल. ठीक है. सो स्टेडी टेम्परेचर कब मेंटेन होगा इस केस में, वी कैन से दैट कि स्टेडी टेम्परेचर इज मेंटेन व्हेन द हीट जनरेटेड इज इक्वल टू द हीट डिसिपेटेड. अगर जितनी हीट जनरेट हो रही है उतनी ही हीट हमारी डिसिपेट हो जाए, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन से दैट द स्टेडी टेम्परेचर इज अटेन्ड. राइट. So the heat dissipation of conductor is basically find from the total losses from dielectric and sheet losses that may be conducted to the earth. So this whole topic, we can say that in this whole topic in the current carrying capacity, so we can conclude in a manner that ये हमारी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो टेम्परेचर राइज के ऊपर डिपेंड करेगी कि अंडरग्राउंड केबल का किस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट में कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है. तो वो टेम्परेचर कैसे राइज हो रहा है. सो जो टेम्परेचर राइज हो रहा है दैट लॉसेस अपेयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है. So these losses are copper losses, hysteresis losses, and we can say that dielectric losses. So इन losses के कारण अंडरग्राउंड केबल में हीट डिसिपेट होती है. ठीक है. जो सेफ वर्किंग टेम्परेचर है आर्मर्ड केबल्स का दैट इज 65 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस फॉर lead sheet cables laid in ducts. So the next topic is regarding the insulation resistance of a single core cable. So while discussing the derivation for insulation resistance of a single core cable, ठीक है. So हमने for the point of discussion we had considered only a single core. This is a single core cable. This is the conductor which is carrying the current, conductor which is carrying the current,
and this is the insulation that is provided around the conductor. So this whole act as a resistance to of the insulation. So from this point to this point, this is the resistance of the insulation, and this R1 represents the resistance of the conductor. Okay. So this R1 represents the resistance of the conductor. Okay. So the distance from center to the this end is termed as x, and this small increase in distance is termed as dx. ठीक है. तो इसमें करना क्या है, जो केबल की जो कंडक्टर है, ये जो केबल का जो ये कंडक्टर है, केबल की कंडक्टर is provided with the suitable thickness of insulating material. ठीक है. In order to prevent the leakage current, cable की conductor is provided with the suitable thickness of insulating material in order to prevent the leakage current. The path for leakage current is radial through the insulation. Radial have center to the surface. ठीक है. जो path है हमारा लीकेज करंट का, दैट इज रेडियल थ्रू द इंसुलेशन फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस. ठीक है. द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस इंसुलेशन, जो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस इंसुलेशन टू द लीकेज करंट इज नोन एज इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगल कोर केबल. ठीक है. जो हमारा कंडक्टर है अंडरग्राउंड केबल में, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल से उसकी लेयर्स बनाई हुई, जो कंडक्टर की लीकेज करंट को, जो कंडक्टर की लीकेज करंट को हमारा इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, सो उसको बोलेंगे हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल. जो ऑपोजिशन प्रोवाइड करेगा लीकेज करंट को, that thing is termed as insulation resistance of a cable. So for the satisfactory operation of the underground cable, we can say that the insulation resistance should be as high as possible. Okay, let us derive a small derivation. So consider a very small layer of insulation of thickness dx. So let us derive one small derivation. Consider a very small layer of insulation of thickness dx. This is a very this is a small layer of insulation of thickness dx at a radius x. So radius कितना है यहाँ पे, x. So consider a very small layer of insulation of thickness dx at a radius x. The length through which leakage current tends to flow is dx. ठीक है. अब वो कितनी लेंथ है जिसमें हमारी लीकेज करंट फ्लो कर सकती है, उसको हमने मान लिया है dx, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्कुलर पाथ इज 2 पाई xl. ठीक है. एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर द सर्कुलर पाथ इज 2 पाई xl. ठीक है. वेयर l इज द वेयर दिस l where this L stands for length of the cable. ठीक है. This L stands for length of the cable, and this R1 stands for single core cable conductor radius, and this R2 stands for insulating material medium radius. ठीक है. So from the whole discussion, we can say that insulation resistance of considered layer is rho times the dx 2 pi xl, where xl is the length of the cable. तो ये हमने लिया था इंसुलेशन रेजिस्टेंस के फाइंड आउट किया स्मॉल लेंथ के लिए. अगर मुझे पूरा होल लेंथ के लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे इंटीग्रेट करना है किसी भी छोटी सी जो चीज, हमने छोटे सा जो क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर किया है, अगर उसका पूरा क्रॉस सेक्शन कंसिडर करना है तो जनरली उस छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन किया जाता है, जिसकी लिमिट्स रहेंगी रेडियस r1 टू
R2 वैल्यू सेम रहेगी. पाई, दिस इज द रेजिस्टिविटी, this is the resistivity of the insulation. So resistivity upon 2 pi L R1 to R2, the value of X is variable here. So by substituting the value of X, we can say that log of R2 divided by R1. So the whole term shows the insulation resistance of a cable in a very clear manner. So from this conclusion, we can say that इस conclusion से हम ये बात कह सकते हैं कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है केबल की, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमारी आएगी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. जैसे जैसे हमारी अंडरग्राउंड केबल के कंडक्टर की लेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज होती जाएगी. जहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे जैसे हमारी अंडरग्राउंड केबल कंडक्टर की लेंथ कम होती जाएगी, तो वैसे वैसे हमारी इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगी.